हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर तक आपने देखा प्रोग्रामिंग मॉडल ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। प्रोग्रामिंग मॉडल ऑफ माइक्रो कंट्रोलर आपको रिक्वायर्ड था बिकॉज you should able to understand the programming. Whenever you are going to write the program of the microcontroller, that time which kind of register are associated with the program, which sections are used by the microcontroller while doing the operations, which flags are enabled or disabled, all these things are coming in programming model. Similarly, the internal memory, which are the different section of the internal memory, which are the different register of the memory. Okay, all these things are required whenever you write the program. So that's why the study of programming model is necessary. Okay, now I'm going for the next one point, that is pins of microcontroller. Okay, तो हम स्लाइड्स में देखते हैं माइक्रो कंट्रोलर का 8051 का पिन स्ट्रक्चर. ओके, hope everyone can able to see the structure. Okay, just I am going to maximize it. पिन डायग्राम ऑफ 8051 अभी आपके सामने है. ओके, नाउ रिमेंबर, पिन डायग्राम में आप ऑब्जर्व कर रहे हो ड्यूल इन लाइन पैकेज. यह आईसी में दो साइड यानी लेफ्ट और राइट हैंड साइड में टर्मिनल रहती है. 20 पिन्स आर इन लेफ्ट, 20 पिन्स आर इन राइट. टोटल 40 पिन का आईसी है. इस आईसी में 32 पिन्स एज आईओ पिन्स हैं और 8 पिन्स हैं वह लाइक आरएसटी, एक्सटर्नल 1, एक्सटर्नल 2, ग्राउंड, वीसीसी, ईए बार स्लैश वीपीपी, एएलई स्लैश पीआरओजी बार, पीएसईएन बार, इस तरह के नाम की टोटल 8 लाइंस है. और रिमेनिंग जो है वह पोर्ट्स में आती हैं. पोर्ट हमारे माइक्रो कंट्रोलर में डाटा रीड और राइट के लिए यूज होता है. तो पोर्ट्स के द्वारा आप एक्सटर्नल आईओ डिवाइसेस या एक्सटर्नल पेरिफेरल के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हो. दैट्स व्हाई टोटल 32 लाइंस आर रिजर्व्ड फॉर पोर्ट्स. तो चलिए हम आगे देखते हैं एक एक करके. Now pins are in front of you. First VCC and ground. Their pins are pin number 40 and 20. VCC is nothing but supply voltage to the chip. A supply voltage is necessary with respect to ground to obtain logic level 1 and 0.
Now, second terminals, Xtel1 and Xtel2. Now these terminal are very similar to X1 and X2 terminal of 8085. In terms of 8085, you heard about the X1 and X2. Now here, instead of X1 and X2 here, you will find Xtel1 and Xtel2. X means is crystal. Okay, X means is Chris and TAL1, crystal 1, crystal 2. A crystal oscillator of frequency between 4 megahertz to 16 megahertz is connected with this terminal. Okay, a crystal oscillator of 4 megahertz to 16 megahertz is connected with this terminal. The terminal number 18 and 19 are the Xtel1 and Xtel2, right? These terminal are connected with the external capacitor. Okay. Remember, because of this crystal oscillator, you will find the clock signal. So internally there is a clock generator. That clock generator is help you to generate the clock signal. Okay. So this is about the Xtel1 and Xtel2. Remember one thing again, I have to add these few points with this. In terms of 8085, there was a CLK out terminal along with this. But now here, in terms of 8051, you cannot find, because the reason is in 8051, internally the central processing unit and the peripheral memories are present. So externally, very few peripheral like IO devices are connected with microcontroller. That's why the CLK out terminal is not present in 8051. In case if there is a necessity of clock signal, then that necessity will be fulfilled with the help of internal timers and counter circuitry, serial communications. So that's why here CLK out terminal is not present. Getting the point? Then RST means reset terminal. Here pin number 9 is the reset pin. It is used for input and active high. Okay, and it is active high. Okay, it is used for input and it is an active high terminal. Remember, the purpose of the reset terminal is to restart the microcontroller. We can restart the microcontroller. Now reset terminal is an active high terminal. Okay, it is an input terminal. So whenever you apply a active high pulse, the microcontroller goes in reset state. रिसेट स्टेट होगा यानी क्या होगा, रिस्टार्ट होगा माइक्रोकंट्रोलर, और रिस्टार्ट होगा तो वहां पर सारे जो रजिस्टर है उन्होंने जो भी डाटा होल्ड किया है वो सारा डाटा नल हो जाएगा. ये पहली बात. कौन कौन से रजिस्टर उसमें पार्टिसिपेट करेंगे? एक्यूमुलेटर, बी रजिस्टर. ओके, एक्यूमुलेटर, बी रजिस्टर, डीपीएच, डीपीएल यानी डीपीडीआर रजिस्टर, PSW फ्लैग रजिस्टर, ये वहां पर पार्टिसिपेट करेंगे. उसके साथ साथ स्टैक पॉइंटर, स्टैक पॉइंटर नल नहीं होगा, उसमें डिफॉल्ट एड्रेस आएगा. डिफॉल्ट एड्रेस क्या है स्टैक पॉइंटर का? 07X. उसके साथ साथ प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर में एड्रेस आएगा 0000H, 4 जीरोस आएंगे क्योंकि वह 16 बिट का रजिस्टर है. इस वजह से वहां टोटल 4 डिजिट 4 जीरोस आएंगे, राइट. और वहां से माइक्रोकंट्रोलर फिर से एग्जीक्यूशन होना चालू करेगा. उसके साथ साथ सारे जो इंटरप्ट्स है वो इंटरप्ट डिसेबल होंगे. गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज अ एक्टिविटी कैरिड बाय द माइक्रोकंट्रोलर इन रीसेट स्टेट. ओके, नाउ next terminal is EA bar.
EA मीन्स एक्सटर्नल एक्सेस और एनेबल एक्सटर्नल एक्सेस। कोई डिजाइनर एनेबल एक्सटर्नल एक्सेस करके नाम देता है, कोई डिजाइनर एक्सटर्नल एक्सेस करके नाम देता है। एक्सटर्नल एक्सेस क्यों, कहा, किसका? रिमेंबर हमारा ये माइक्रो कंट्रोलर है, ये माइक्रो कंट्रोलर में दो तरह की मेमोरी यहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हो। ओके, इंटरनल मेमोरी ऑलरेडी है, इंटरनल रैम और इंटरनल रोम, और उसके साथ साथ आप एक्सटर्नली रैम और रोम का कनेक्शन कर सकते हो एक्सटर्नली भी। एक्सटर्नली अगर आप उसे कनेक्ट करते हो तो उसे कहा जाता है एक्सटेंशन ऑफ मेमोरी। जैसा आप मोबाइल में एक हदा मेमोरी कार्ड इंटरफेस करते हो तो वो एक्सटर्नल मेमोरी हो गई, यानी आपको वहां पर फोन मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी ऐसे दो बातें हो गई, राइट। अभी ये माइक्रो कंट्रोलर अगर इंटरनल और एक्सटर्नल मेमोरी में यूज करना चाहता है, मेमोरीज अगर यूज करना चाहता है तो कैसे करेगा, क्या करेगा, यहाँ पर उसके लिए क्या एक्टिविटी रहेगा? सी, रिमेंबर ये पिंस के ऊपर सारा खेल है। पिंस बोलेगी कि भाई अब हम इंटरनल मेमोरी यूज कर रहे हैं कि एक्सटर्नल मेमोरी यूज कर रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट? सो अगर ये ई ए पिन अगर वीसीसी को कनेक्टेड रहा, रिमेंबर अगर ये वीसीसी को कनेक्टेड रहा तो आपको इंटरनल ऑन चिप मेमोरी वहां पर मिलेगी। तो माइक्रो कंट्रोलर उसी मेमोरी से, रोम से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? माइक्रो कंट्रोलर uses internal memory when EA is high, when EA bar is high, okay, and when EA bar is low means it is connected to ground, then एक्सटर्नल मेमोरी आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएगी और एक्सटर्नल मेमोरी से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। रिमेंबर प्रोग्राम क्यों एग्जीक्यूट करेगा? रोम कौन है? रोम इज अ रीड ओनली मेमोरी, या प्रॉम रहेगा, या डबल प्रॉम रहेगा, या फ्लैश मेमोरी रहेगा। आपने जो सिलेक्ट की है वो टाइप की मेमोरी वहां पर रहेगी, लेकिन वहां वो मेमोरी में क्या रहेगा? प्रोग्राम ही रहेगा, कोड रहेगा। वह कोड आपने लिखा रहेगा, वो कोड आपको एग्जीक्यूट करना रहेगा। वही कोड आप एग्जीक्यूशन के लिए ये पिन को बोलोगे इट इज एक्टिव लो, व्हेन इट इज एक्टिव लो देन एक्सटर्नल मेमोरी विल बी अवेलेबल एंड देयर प्रोग्राम गोज इन एग्जीक्यूशन। और इसके साथ साथ और एक पॉइंट, अब अगर आप EA बार अगर यूज करते हो तो EA बार के साथ साथ आपको PACN की टर्मिनल भी यूज करना है। EA बार के साथ PACN नाम वाली पिन क्यों? उसका नीचे वो डिस्क्रिप्शन दिया है, देखो। PACN बार यानी प्रोग्राम स्टोर एनेबल। जो प्रोग्राम रोम में स्टोर्ड है वो प्रोग्राम को एनेबल, वो प्रोग्राम के ब्लॉक को एनेबल करने का काम इस लाइन का, इस पर्टिकुलर सिग्नल का होता है। दिस इज अ एक्टिव हाई, दिस इज अ sorry, yeah, this is a active low output signal. Okay, this signal is connected to the OE pin of ROM. Okay, OE यानी आउटपुट एनेबल पिन को कनेक्टेड रहता है। ये सिग्नल वहां पर कनेक्ट किया जाएगा क्योंकि वो रोम को एनेबल करेगा। रोम को अगर एनेबल करेगा तो रोम में जो भी प्रोग्राम होगा वो एग्जीक्यूशन अलाउ करेगा। So that's why आपको यहाँ पर लिख के दिया है access the external ROM containing the program code. Got it? कोई डाउट? ओके, EA और PACN समझ में आया? कोई डाउट रहा तो कुछ ना, रिमेंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट पिन है, आपने 8085 में लर्न की है। यह पिन का नाम है एड्रेस लैच एनेबल, ALE बोले तो एड्रेस लैच एनेबल। एड्रेस बस और डाटा बस माइक्रो कंट्रोलर में प्रेजेंट होती है। कहा? कौन से पोर्ट के ऊपर, कौन से पिंस के ऊपर? याद रखो एड्रेस और डाटा लाइंस टोटल हमारे माइक्रो कंट्रोलर में है 16 एड्रेस लाइंस, 8 डाटा लाइंस। 16 एड्रेस लाइंस दो पार्ट में ब्रेक किए गए हैं, लोअर ऑर्डर एड्रेस लाइंस और हायर ऑर्डर एड्रेस लाइंस। लोअर ऑर्डर एड्रेस लाइंस डाटा लाइंस के साथ मल्टीप्लेक्स है D0 to D7 के साथ, तो उनके पूरे कंप्लीट नाम रहेंगे AD0 से लेकर AD7।
गॉट माय पॉइंट? क्या? AD0 से लेकर AD7, ओके, लिख रहा हूं, दिख रहा है, ओके। और हायर ऑर्डर एड्रेस लाइंस है आपके पास A8 से लेकर A15 तक। गॉट इट? समझ में आ रही बात? तो याद रखिए, हमारे माइक्रो कंट्रोलर में AD0 से लेकर AD7 यह लोअर ऑर्डर एड्रेस डाटा लाइन अवेलेबल है, और A8 से लेकर A15 तक हायर ऑर्डर एड्रेस लाइंस अवेलेबल है। अभी ALE लाइन का यूज क्या? नाउ आई एम गोइंग फॉर शेयरिंग। ओके, ब्रेक हो गया था इंटरनेट, ओके, वेट, आई एम रिज्यूमिंग ऑल द सर्विसेज, right? Now you can able to listen, you can able to watch all the slides right now, okay? Now see what I am telling you. What is the purpose of ALE? See, listen, ALE is a address latch enable. The purpose of this line, remember, to do the demultiplexing of address and data lines. ओके, हमारे माइक्रो कंट्रोलर प्रोवाइड करेगा मल्टीप्लेक्स एड्रेस और डाटा लाइंस। ये जो मल्टीप्लेक्स एड्रेस और डाटा लाइंस है, इनको हमें एक्सटर्नल मेमोरी के लिए यूज करना है। एक्सटर्नल मेमोरी अगर आप यूज कर रहे हो तो एक्सटर्नल मेमोरी को एड्रेस और डाटा का सेपरेशन होना। एड्रेस लाइंस को कनेक्ट होगी, डाटा लाइंस को कनेक्ट होगी। तो ऐसे सिचुएशंस में हम उसे वहां कनेक्ट करेंगे। तो कनेक्ट अगर करेंगे तो कनेक्ट करते समय सेपरेटेड लाइन होना। मल्टीप्लेक्स लाइन रहा तो माइक्रो जो पेरिफेरल है, जो मेमोरी है, वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा कि वो एड्रेस है अभी उस लाइंस के ऊपर या डाटा उस लाइंस के ऊपर है। गॉट इट माय पॉइंट? दैट्स व्हाई to avoid this confusion of the memory, the ALE is used along with a octal latch. There is a IC, that IC has a number 74LS373. This IC is carrying 8D flip-flop. These flip-flop are called latch. This is nothing but octal latch, and this IC has total 8 flip-flop. These 8 flip-flop are connected with 8 lines of multiplex, 8 multiplex lines of microcontroller. And because of this 74LS373, address lines and data lines are get separated. I hope you heard, you listen, you watch demultiplexing of lower order address and data lines in 8085 microprocessor. फर्स्ट यूनिट में ये पॉइंट सेपरेट 8085 के साथ पढ़ाया जाता है। ये पॉइंट शायद आपका फर्स्ट यूनिट में कवर हुआ होगा, नहीं हुआ होगा। आई गो फॉर दैट वीडियो एंड giving that video link to you, no problem, okay? But now for this moment, keep it in mind, ALE is used for demultiplexing of multiplex address and data lines. Got it? कोई डाउट? तो याद रखो, ये लाइन जब 1 कैरी करेगी लॉजिक बीट या 0 बिट कैरी करेगी तो क्या होगा? सी, आई गिवन इन बोल्ड लाइंस, व्हेन ALE is equal to 0, data is available over AD0 to AD7 lines, right? तो AD0 to AD7 लाइन लैच को कनेक्टेड रहेगी, लैच के द्वारा डाटा पास होगा या ब्लॉक होगा, वो तो डायग्राम में पता चलेगा, राइट? तो वहां से आपको डाटा लाइंस के ऊपर अवेलेबल होगा, और जो एक्सटर्नल मेमोरी वहां पर कनेक्टेड रहेगी, वो एक्सटर्नल मेमोरी वहां डाटा रिसीव करेगी और वो अंडरस्टैंड करेगी नाउ वैलिड डाटा इज अवेलेबल ओवर द
address data line. Okay, similarly, another point is when AL is equal to 1, the address is available over address and data line, that is A8 to A15, right? तो A8 से A15 तक एड्रेस अवेलेबल होगा. ओके, गॉट इट? कोई डाउट, कोई ट्रबल? चलिए, ये पॉइंट आगे और आएगा, आगे और दोहराऊंगा. कुछ आपको कोर्ट्स में देखो उसकी जरूरत पड़ने वाली है. सी, आई एम गोइंग टू रिमाइंड यू अगेन, राइट? एट दिस मोमेंट आई होप दिस पॉइंट विल बी क्लियर, राइट? चलो नेक्स्ट पिंस के ऊपर चलते हैं. पोर्ट्स की पिंस देखते हैं. एग्जाम में कभी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन पोर्ट्स पिंस. ओके, और एक्सप्लेन, लिस्ट एंड एक्सप्लेन द पोर्ट्स ड्यूअल फंक्शन. ओके, तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आंसर आपका कुछ इस तरह रहना चाहिए. सी, IO port and their function. Now I am going to explain. Now here we are going to discuss total 32 lines. Up till now we discuss about only 8 lines, right? Okay, 8 ही लाइन हमने अभी तक डिस्कस किए हैं. अभी रिमेनिंग जो 32 लाइंस है वो 32 लाइंस हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं. तो सी, हमारे इस माइक्रो कंट्रोलर में टोटल तो 32 लाइंस है, वह आपको एज IO लाइंस के IO लाइंस एज अवेलेबल है. वो IO लाइंस 4 ग्रुप में आपको अवेलेबल है. 4 ग्रुप में उनके नाम है पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3. हर ग्रुप में 8 लाइंस आपको अवेलेबल है. हर ग्रुप में 8 लाइंस आपको अवेलेबल है. वह 8 लाइंस आपको एज IO लाइंस अवेलेबल होगी. आप उन्हें बीट वाइज, निबल वाइज या बाइट वाइज आप यूज कर सकते हो. याद रखो, आपको अगर बीट वाइज अगर उसे हैंडल करना है तो भी आप उसे यूज कर सकोगे. इंडिविजुअल बीट, ओके, या इंडिविजुअल बाइट या इंडिविजुअल निबल, आप उसको हैंडल कर सकोगे. गेटिंग माय पॉइंट? तो सी, व्हेन you find microcontroller is in reset state, then all the ports are configured as input port. Okay, they are readily available for input operation or input port, right? Now I am talking about the port 0. Remember, we are going to discuss each and every pin's function, its dual role and the use. Okay, तो पोर्ट्स के टोटल 4 पोर्ट्स अवेलेबल रहेंगे. पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2 और पोर्ट 3. याद रखो, माइक्रो कंट्रोलर 8051 आप पढ़ रहे हो. 8051 में कुल मिलाकर 4 पोर्ट रहते हैं. P0, P1, P2, P3. इनके शॉर्टकट है, आप पूरा नाम लिखो PORT या P0, P1, P2, P3 चलेगा. अभी पोर्ट 0 में पिन नंबर 32 से 39 तक आपको पिन्स अवेलेबल रहेंगी. 8. ये 8 पिन्स आपको एज अ इनपुट या आउटपुट अवेलेबल होंगी. ओके, रिमेंबर, यह पिन्स आप एक्सटर्नली यूज कर रहे हो. तो एक्सटर्नली अगर आप एज अ IO ऑपरेशन में अगर यूज कर रहे हो तो यूज करते समय आपको वहां पर 10 किलो ओहम का पुल अप रजिस्टर कनेक्ट करना जरूरी रहेगा. क्या? क्योंकि क्या रीजन है, वहां पर ओपन ड्रेन टर्मिनल अवेलेबल होगी. ओके, यह टर्मिनल अगर आप कोई पेरिफेरल, कोई IO डिवाइस के साथ अगर आप यूज कर रहे हो इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन में, तो आपको वहां ये पिन्स यूज करते समय 10 किलो ओहम का पुल अप रजिस्टर बनाना पड़ेगा और उसके द्वारा आप उसे यूज कर सकोगे. अगर आप डायरेक्टली किट यूज कर रहे हो तो आपको वो केयर लेने की जरूरत नहीं, उसके डिजाइनर ने ऑलरेडी यूज कर लिया होगा. गॉट माय पॉइंट? यानी अगर आपके पास रेडीमेड किट अगर अवेलेबल है तो वो रेडीमेड किट में 10 किलो ओहम का पुल अप रजिस्टर वहां पर डायरेक्टली पोर्ट के साथ कनेक्टेड होगा ही होगा.
ओके, आपको वहां कनेक्ट करने की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन अगर नहीं होगा तो यू नीड टू कनेक्ट इट एक्सटर्नली, राइट। अभी पहला फंक्शन पोर्ट जीरो का पहला फंक्शन है, आप इसे एज ए इनपुट और आउटपुट लाइन एज ए यूज कर सकते हो। सेकंड फंक्शन है, आप इन लाइंस को एज अ लोअर ऑर्डर लोअर ऑर्डर मल्टीप्लेक्स एड्रेस एंड डाटा लाइंस के द्वारा भी यूज कर सकोगे। ओके, उनको नाम है AD0 to AD7। आप इनके द्वारा एड्रेस और डाटा का एक्सटर्नल मेमोरी के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हो। ओके, तो यानी आप ये लाइंस एक्सटर्नल रोम के साथ, डबल प्रॉम के साथ, प्रॉम के साथ या फ्लैश मेमोरी के साथ उसे कनेक्ट कर सकते हो, राइट। तो इस वजह से यह पोर्ट्स के दो फंक्शन है, पहला एज अ इनपुट आउटपुट और दूसरा एड्रेस एंड डाटा लाइंस AD0 to AD7, राइट। अभी ये तो आपको पता है भाई, लास्ट स्लाइड में मैंने कहा ALE पिंस का यूज क्या है, तो आपको एड्रेस और डाटा कब अवेलेबल होगा, ये सारी बात यहाँ पर आपको फिर से मैंने दोहराई। ओके, व्हेन ALE is 0 data is available, when AL is 1 address is available, right? So in case if you are not going to connect any external memory, then here the sentence is written, okay, I written is extra, okay, port 0 must be connected externally to a 10 kilo ohm pull up register, right? Okay, so these are the role of port 0. Now दिस इज अबाउट द पोर्ट जीरो। पोर्ट जीरो में क्या और क्या रहेगा, ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ पोर्ट जीरो में क्या क्या अंडरस्टैंड करोगे, क्या याद रखोगे। पोर्ट जीरो हैज टोटल 8 लाइंस। These lines are used as an input or output, or you can use as a address or data lines, lower order address or data lines. Okay, अभी उनके पिंस अगर आपको यूज करने हैं प्रोग्रामिंग में, तो P0 पूरा नाम यूज करो, P0 प्रोग्रामिंग में, या अगर आपको एक ही लाइन यूज करनी है वो भी 0th नंबर की, तो उसे आप यूज कर सकते हो नाम P0.0। डॉट जीरो इज एन एक्सेस ऑपरेटर फॉर 0 लाइन। 0 नंबर इसलिए दिया है क्योंकि वो 0th नंबर की लाइन है। अगर आप 1 नंबर दोगे तो 1 नंबर की लाइन होगी, 2 दोगे तो सेकंड नंबर की लाइन होगी। ओके, तो आप जो नंबर की लाइन एक्सेस करना चाहते हो वो लाइन का नंबर डॉट के बाद दो। डॉट इज एन एक्सेस ऑपरेटर, इट हेल्प यू टू एक्सेस दैट स्पेसिफाइड टर्मिनल। आप उस लाइन के द्वारा एक सिंगल बिट रीड कर सकते हो या एक सिंगल बिट सेंड कर सकते हो, राइट। गेटिंग माय पॉइंट। ये था पोर्ट 0 के लिए। यही कॉन्सेप्ट आपका एप्लीकेबल रहेगा पोर्ट 1, पोर्ट 2 और पोर्ट 3 में भी सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। अगर आपको पोर्ट 1 की या पोर्ट 2 की या पोर्ट 3 की कोई भी लाइन अगर आपको यूज करनी होगी तो आप P1.0 या P2.0 या P3.0 करके आप उसे एक्सेस कर सकते हो। ओके, कोई डाउट? हाँ, पोर्ट 1। पोर्ट 1 में आपको यहाँ अवेलेबल रहेंगी पिन 1 से लेकर 8 तक। ओके, अगेन यहाँ पर 8 लाइन आपको अवेलेबल रहेगी, 8 लाइंस। इन लाइंस का पर्पस रहेगा टू डू द इनपुट एंड आउटपुट। रिमेंबर, it does not require pull-up register because they are already connected internally in microcontroller. A pull-up register are present, so that's why there is no need of external pull-up register. And upon reset, port 1 can be configured as input port. Okay, by default all ports are configured as input port. Okay, now one important point is here, पोर्ट 1 हैज नो एनी ड्यूअल रोल, उसको सिंगल ही रोल है। पोर्ट 1 को, पोर्ट 1 में सिर्फ एक ही तरह का काम हो सकता है, आप डाटा इन या डाटा आउट कर सकते हो, दूसरा इसका कोई रोल नहीं रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट? कोई ट्रबल? पोर्ट 2 के बारे में डिस्कस करते हैं। पोर्ट 2 आपके लिए पिन नंबर 21 से लेकर 28 तक अवेलेबल होगा। पोर्ट 2 में भी 8 लाइंस रहेंगे। ओके, वह लाइंस आप एज अ इन या आउट लाइन एज अ यूज कर सकते हो। ओके, और पोर्ट 2 में आपको एक्सटर्नल पुल-अप रजिस्टर रिक्वायर्ड नहीं रहेंगे जैसे पोर्ट 1 में आपको अवेलेबल है।
ओके, तो वैसे ही यहाँ पर भी इंटरनली आपको पुल अप रजिस्टर अवेलेबल है। अभी यहाँ इस पोर्ट में ड्यूअल रोल अवेलेबल है भाई। पहला रोल था एज अ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, सेकंड रोल है एज अ 16 बिट एड्रेस लाइंस, यानी हायर ऑर्डर एड्रेस लाइंस A8 से लेकर A15 यहाँ अवेलेबल होगी। ओके, तो ये सेकंड रोल रहेगा, यानी वह लाइंस आप वह लाइन A8 से लेकर A15 यानी पोर्ट 2 की सारी लाइंस आप एक्सटर्नल मेमोरी के साथ शेयर कर सकते हो, और वहाँ वह लाइंस कैरी करेगी एड्रेस, कौन सा, हायर ऑर्डर एड्रेस, राइट। Again, whenever you are going to restart the microcontroller, port 2 is configured as an input port. Okay, so remember these are the points that you can discuss about port 2. Okay, any extra point is not present here, right? Now we are going to discuss port 3. Port 3 specifically has a dual role. Port 3 pins, pin number 10 to pin number 17 are available. Okay, now here again 8 lines are available. You can use these 8 lines as an input and output, right? Similarly, you can use this line as a, as I have mentioned you, different operation strategy. Okay, means P3.0 and 1 is used as RxD and TxD. RxD बोले तो रिसीवर एंड TxD बोले तो ट्रांसमीटर, यानी आप सीरियली डाटा रिसीव कर सकते हो या सीरियली आप डाटा ट्रांसमिट कर सकते हो। तो सीरियली डाटा रिसीव करना होगा तो P3.0, सीरियली अगर डाटा ट्रांसमिट करना होगा तो P3.1, राइट। तो इट इज अ पार्ट ऑफ सीरियल कम्युनिकेशन। इन टर्म्स ऑफ 8085 you heard about the SID and SOD lines. Okay, these lines and here these line RxD and TxD are very similar. Okay, there is no any difference between this 8085 and 8051, only the names are different. In 8085 SID and SOD, and in terms of 8051 RxD and TxD names are present. ओके, नाम चेंज हो गया है, काम सेम है, सीरियल कम्युनिकेशन का, राइट। देन P3.2 और P3.3 है, यह आपको यूज करना है एक्सटर्नल इंटरप्ट्स के लिए। आप एक्सटर्नल इंटरप्ट INT0 और INT1 का यूज यहाँ पर कर सकते हो। आप एक्सटर्नली इंटरप्ट रिसीव कर सकते हो, ओके, और एक्सटर्नली आप कोई भी पेरिफेरल को यहाँ एंटरटेन कर सकते हो, राइट। तो दीज आर द एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट टर्मिनल। Then P3.4 and P3.5 are here. It is used for timer 0 and timer 1. Okay, timer 0 and timer 1 आपको यहाँ पर इंटरनली अवेलेबल रहेंगे, बट वह टाइमर और काउंटर की एक एक टर्मिनल वहाँ अवेलेबल रहेगी आपको यहाँ P3.4 और 5 के ऊपर, बिकॉज whenever you have to receive a signal from external peripheral, or you need to give, or if you have to give timer signal to the external peripheral, then that timing and counting action you can carry out with the help of this P3.4 and P3.5. Okay, so that's why these terminal are present. Then P3.6 and 7 are available. 6 is named as write and 7 is named as read. So microcontroller will do the read and write operation with external peripheral. So to inform this peripheral which type of operation will perform by the microcontroller, that time here read and write lines are there. So because of this, the peripheral will able to understand what kind of operation will be performed by the microcontroller. Okay, so remember these lines are get active low or get active high as per the microcontroller operations, right? So these are the dual role of the microcontroller port 3. So keep it in mind, I have given you in the chart. Okay, in the chart you can able to see P3 bits on their function. Okay, so first function is as an input and output, and second one function is listed in the table. Okay,
बात समझ में आ रही है आपको? ओके तो एग्जाम में अगर कभी आपको क्वेश्चन पूछा व्हाट आर द ड्यूअल रोल ऑफ द पोर्ट्स, तो यू कैन एबल टू एक्सप्लेन ऑल दीज रोल्स ऑफ द पोर्ट्स। ओके तो पोर्ट्स पूरा डिटेल में आपको दिया है। ओके पोर्ट्स की रिलेटेड प्रोग्रामिंग आपको रहेगी, मैं आपको धीरे धीरे वो ले रहा हूँ। ओके लेकिन पहले थियोरेटिकल पॉइंट पहले कवर कर लेता हूँ। वंस आवर थियोरेटिकल पॉइंट आर गेट कवर्ड देन आई विल टर्न टुवर्ड द प्रोग्रामिंग। ओके आपको पोर्ट्स क्या है, पोर्ट्स की प्रोग्रामिंग कैसी रहेगी, कौन से इंस्ट्रक्शंस आपको वहां पर रिक्वायर्ड रहेंगे, ये सारी बातें आपको वहां पर एक एक करके दे रहा हूँ। ओके नाउ आई एम क्विटिंग दिस वीडियो। ओके if you have any doubt you can ask very freely. Okay don't hesitate to ask any question। जो डिप्लोमा होल्डर है उनको पता है, लेकिन जो 12th है आफ्टर पासिंग ओके उनको थोड़ी दिक्कत आती है, तो यू शुड एबल टू आस्क। ओके बहुत इजी है, सब्जेक्ट बहुत इजी रहेगा। माइक्रो कंट्रोलर जिसको समझ में आ गया उसका लाइफ बन गया। ओके तो याद रखो प्रोग्रामिंग आराम से एक एक करके मैं दे रहा हूँ, वीडियो वॉच करो, सभी बातें एक A to Z आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। राइट ओके ठीक है।